गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास सेकंड बुक का चैप्टर 3 द शेफर्ड्स ट्रेजर। कल हमने इसका शॉर्ट समरी आपको बताया। आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो सब अपनी बुक को खोल लें, पेन और पेंसिल अपने पास रखें और जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता जाता हूँ वहाँ आप अंडरलाइन करते जाना। तो शुरू करते हैं। इन ए village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learnt to read and write, for there were very few schools in those days. एक बार ईरान के एक गांव में एक चरवाहा रहता था। वो बहुत ही निर्धन था। उसके पास एक छोटी झोपड़ी भी नहीं थी। वह कभी स्कूल नहीं गया और न ही उसने पढ़ना लिखना सीखा, क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल होते थे। स्टार्टिंग क्या है इस चैप्टर की? इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लाइव्ड ए शेफर्ड. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. यहाँ पर उस चरवाहे का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि वो कहाँ रहता है, वो किस प्रकार उसका रहन सहन है, उसने कहाँ तक पढ़ाई की, और इतना गरीब, इतनी शिक्षा ना मिलते हुए भी जब हमने शॉर्ट समरी में बताया था कि वो कितना बुद्धिमान निकला, तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया है इन्होंने कि वो ईरान में रहता था, बहुत गरीब था, रहने के लिए भी सही ढंग से व्यवस्था नहीं थी, स्कूल भी नहीं गया, और गया भी होगा तो थोड़े दिन के लिए गया। सेकंड पैराग्राफ, थोज पुअर एंड अनएजुकेटेड. This shepherd was very wise. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. निर्धन और अनपढ़ होते हुए भी यह चरवाहा बड़ा बुद्धिमान था। वह लोगों के दुख दर्द को समझता था और उनकी समस्याओं का सामना साहस तथा सूझबूझ से करने में उनकी सहायता करता था। बहुत से लोग उससे परामर्श लेने आते थे। शीघ्र ही वह अपनी बुद्धिमत्ता और मैत्रीपूर्ण स्वभाव के कारण प्रसिद्ध हो गया। उस देश के राजा ने उसके विषय में सुना और उससे मिलने के बारे में सोचा।
द्वार पढ़ देता हूँ। थॉज पोअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, he understood people's sorrows and to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. Third paragraph, next paragraph. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own merge meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. एक दिन चरवाहे का वेश धारण कर खच्चर पर सवार होकर उस गुफा पर गया जहाँ बुद्धिमान चरवाहा रहता था। जो ही चरवाहे ने यात्री यानी राजा, यहाँ पर ट्रैवलर कौन है? राजा को गुफा की ओर आते हुए देखा, वह उसका स्वागत करने के लिए उठ खड़ा हुआ। वह थके यात्री को गुफा के अंदर ले गया, यानी राजा को, उसे पीने के लिए पानी दिया और अपने साधारण भोजन का एक हिस्सा उसे खाने को दिया। राजा ने गुफा में विश्राम किया। वह चरवाहे के अतिथि सत्कार तथा बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालाप से बहुत प्रभावित हुआ। तो बार पढ़ देता हूँ। Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own merge meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. Next paragraph. Though still tired, the king decided to depart the next morning. He said, "Many thanks for your kindness to a poor traveler. I have a long way to go. Permit me to leave." Looking straight into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." यद्यपि राजा भी थका हुआ था, फिर भी उसने अगली प्रातः जाने का निश्चय किया। वह बोला, "एक निर्धन यात्री के प्रति दयालुता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे जाने की अनुमति दीजिए।" अपने अतिथि की आंखों में झांकते हुए चरवाहे ने उत्तर दिया, "महाराज, मेरे यहाँ पधार कर मुझे सम्मानित करने के लिए धन्यवाद।" जैसे उसने महाराज किया तो क्या होगा? क्योंकि चरवाहे ने जो वेशभूषा यानी नकली चरवाहा बनकर जो आया था वो कौन था? राजा। लेकिन जो चरवाहा था, गरीब चरवाहा था, उसने राजा को पहचान लिया था और पहचानने से पहले उसने राजा की खूब सेवा की, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय भी दिया और
जब वो राजा वापस अपने महल जाने लगा तो राजा चरवाहे ने उसको पहचान लिया और क्या बोलता है कि यहाँ आने के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किससे? राजा से। नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट सेंटेंस। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड as well as pleased. He is indeed very wise. He thought to himself, I need people like him to work for me. And the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. People loved and honored him for his wisdom, sympathy, and goodness. He was kind and just to one and all. His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. राजा हैरान हुआ, राजा भी हैरान हुआ और प्रसन्न भी। वास्तव में वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने भी मान लिया कि इसने मुझे पहचान लिया है, तो राजा प्रसन्न भी हुआ और हैरान भी हुआ। वास्तव में वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने मन में सोचा, मुझे काम के लिए ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है। अतः राजा ने उस विनम्र चरवाहे को एक छोटे से जिले का गवर्नर यानी शासक बना दिया। यद्यपि उसे सत्ता और सम्मान प्राप्त हो गए, फिर भी चरवाहा पहले की बात ही विनम्र रहा। लोग उसकी बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और अच्छाई के लिए उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। वह सभी के प्रति समान रूप से दयालु तथा न्यायशील था। शीघ्र ही एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान गवर्नर के रूप में उसकी ख्याति सारे देश में फैल गई। वाइज गवर्नर सुन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। हमने यहाँ तक पढ़ा, एक अच्छी स्टोरी है, समझो तो आप भी अपनी बुद्धिमत्ता का, सिंपैथी का कभी मौका मिल जाए आपको, तो आप इसके लिए हमेशा तैयार रहना। क्यों? क्या पता जिससे आप मिल रहे हो वो बहुत बड़ा कुछ निकल जाए और वही आपका जीवन बदल दे। इसलिए जिससे भी मिलो आप, अनजान व्यक्ति से या जानकार से भी, तो आपकी अब बुद्धिमत्ता का नहीं, बुद्धिमत्ता का परिचय दो। मतलब लोगों के दिलों में, दिमाग में आपकी तस्वीर रहनी चाहिए, आपकी बातें याद रहनी चाहिए। क्योंकि समय कहकर नहीं आता है कब आप अर्श से फर्श पर पहुँच जाओ या फर्श से अर्श पर पहुँच जाओ। तो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said he is very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him? They added an iron chest. Perhaps he carried in it the treasure that he secretly collected. After all, they said mockingly, he was an ordinary shepherd and
could behave no better. अब अन्य प्रांतों के गवर्नर से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे, जीलियस फील करने लगे और उसके विरुद्ध राजा के कान बढ़ने लगे। वे राजा से कहते थे वो बहुत बड़ा बेईमान है, वह लोगों से एकत्रित किए गए कर या धन का कुछ भाग अपने पास रख लेता है। साथ में वे यह भी कहते कि वह लोहे की एक पेटी सदा अपने साथ क्यों रखता है, शायद उसमें वो खजाना रखता है जो उसने गुप्त रूप से एकत्रित किया है। मजाक उड़ाते हुए वे कहते कि आखिर वह है तो एक साधारण चरवाही, एक चरवाहे से, एक भेड़ चराने वाले से इससे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है। ऐसा कौन कह रहे थे? राजा के जो सलाहकार थे, जो मिनिस्टर थे, वो राजा के क्या कर रहे थे? कान भर रहे थे। क्यों? क्यों? जिलियस फील कर रहे थे। उस गरीब चरवाहे को जितना मान सम्मान मिला, वो मान सम्मान अन्य प्रांतों के गवर्नर्स को नहीं मिला था। नेक्स्ट पैराग्राफ। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered. The new governor did carry an iron chest with him all the time. So one day the new governor was summoned to the place. He came riding on his camel. To everyone's delight, the famous iron chest was there, fashioned securely behind him on the camel's back. पहले तो राजा ने इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु वो चरवाहे के विषय में इन गवर्नरों तथा उनकी अंतहीन कहानियों की कब तक उपेक्षा कर सकता था। राजा ने देखा कि एक बात तो सही थी, नया गवर्नर लोहे की एक पेटी तो सदैव अपने पास रखता था। इसलिए एक दिन नए गवर्नर को महल में बुलाया गया, यानी उस गरीब चरवाहे को अपने ऊँट पर सवार होकर आया। यह देखकर सभी खुश हो गए कि वह चर्चित पेटी उसके पीछे ऊँट की पीठ पर सुरक्षित बंदी थी। समझे आप? क्या समझे? कि पहले तो राजा इन शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया, परंतु चरवाहे के विषय में इन गवर्नरों तथा उनकी अंतिम कहानियों की कब तक उपेक्षा कर सकता था। वो इनको इग्नोर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि लगातार ये बातें उनके सलाहकार, उनके नज़दीकियों से बार बार कही जा रही थी। राजा ने देखा कि एक बात तो सही थी, और वो बात क्या सही थी? कि नया गवर्नर अपने पास एक पेटी तो रखता है। इसलिए एक दिन उस नए गवर्नर को राजा ने बुलाया, वो अपने ऊँट पर सवार होकर आया। वह वहाँ जो महल में जो खड़े थे वो सब देखकर खुश हुए कि पेटी भी साथ है और सुरक्षित बंदी हुई है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं आगे, क्या होता है देखें। नाउ द किंग वॉज एंग्री, नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड, व्हाई डू यू always carry that iron chest with you? What does it contain? The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment and even of the king himself, when the chest
was opened, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। वह गरज कर बोला, तुम ये लोहे की पेटी सदा अपने साथ क्यों लिए फिरते हो? इसमें क्या रखा है? गवर्नर मुस्कुराया। द गवर्नर स्माइल्ड। उसने अपने नौकर से पेटी अंदर लाने को कहा। चारों ओर खड़े लोग बड़ी उत्सुकता से चरवाहे की चोरी पकड़े जाने की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु जब पेटी खोली गई तो राजा सहित सभी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें से सोना, चांदी या हीरे नहीं, अपितु मात्र एक ब्लैंकेट निकला। गर्व से उसे ऊपर उठाते हुए चरवाही ने कहा, मेरे प्रिय स्वामी, यही मेरा एकमात्र खजाना है। मैं इसे सदा अपने पास रखता हूँ। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, इज माई ओनली ट्रेजर। किसे बोलता है? उसके प्रिय राजा से, माई डियर मास्टर। लास्ट पैराग्राफ है, क्लाइमैक्स की ओर जा रहे हैं हम, निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। तो क्या होता है स्टोरी के अंत में? बहुत ही मुझे भी जानने की उत्सुकता है, आपको भी हो रही होगी, तो देखते हैं। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district, the king asked. To which the shepherd replied with quiet dignity, this blanket is my oldest friend. It will still protect me at any time. Your Majesty should wish to take away my new clocks. How pleased the king was, and how embraced the zealous governor became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. तो समझे आप? हिंदी में बोल देता हूँ। परंतु तुम ऐसा साधारण कंबल सदा अपने पास क्यों लिए फिरते हो? मतलब, बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू? श्योरली, अब क्या? यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, आखिर तुम एक जिले के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा पूछता है। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी। अब शेफर्ड यानी चरवा, वो उत्तर देता है। इस पर चरवाहे ने शालीनता से उत्तर दिया, ये कंबल मेरा सबसे पुराना मित्र है। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, it will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clocks. यदि किसी समय महाराज मेरे शाही वस्त्र उतरवा लेते हैं, यह तब भी मेरी सुरक्षा करेगा। मतलब कि आज तो मैं गवर्नर हूँ, मान लो किसी समय
आपने मेरी जो आपने मुझे गवर्नर बनाया, आप वो मेरे से छीन लो तो मेरी कौन मदद करेगा? मेरी सिर्फ ये कमल ही मेरी सुरक्षा करेगा। कभी भी आपके जो ये शाही कपड़े हैं, जो आपने मुझे फैसिलिटी दे रखी है, आप मेरे से कभी भी छीन सकते हो, लेकिन सब छीनने के बाद भी मेरे पास बचेगा क्या? सिर्फ मात्र एक कंबल, जिससे मैं अपना शरीर तो ढक सकता हूँ, जिससे मैं अपने आप को सुरक्षा तो कर सकता हूँ। आगे, हाउ प्लीज द किंग वाज एंड हाउ एम्ब्रेस द जीलियस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। बुद्धिमान व्यक्ति का उत्तर सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ, और ईर्ष्यालु गवर्नर, जो उसके आसपास जो गवर्नर बैठे थे, जो ईर्ष्या करते थे, जीलियस फील करते थे, बड़े लज्जित हुए। अब वे जान गए थे कि चरवाहा वास्तव में ही देश का सबसे अधिक विनम्र और बुद्धिमान व्यक्ति है। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. उसी दिन राजा ने उससे कई अधिक बड़े जिले का गवर्नर बना दिया। अब राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता का, उसकी दयालुता का उसे क्या गिफ्ट दिया, क्या सरप्राइज दिया उसे? द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन से राजा ने उसे, जो पहले वो जिस प्रांत का वो गवर्नर था, उससे भी बड़े प्रांत का उस चरवाहे को गवर्नर बना दिया गया। यह उसकी बुद्धिमत्ता का एक इनाम था, गिफ्ट था। आप इसे एक सरप्राइज भी बोल सकते हो। तो हमने ये चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर पढ़ा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। आप इसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, जो मैं आपको PDF से आपके ग्रुप में और बाकी क्लास के अंदर भी मैं आपको बता दूंगा। तो आज का चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर ख़त्म होता है, एंड होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स, टेक केयर, ओके।